Bismillahirrahmanirrahim. Topic we are going to discuss today are the structure which are present deep inside the neck. There are many structures we are going to see the deep inside the neck. In the form of the gland like thyroid and the parathyroid, thymus, arteries may be subclavian or carotid, vein subclavian, internal jugular and brachiocephalic vein, glossopharyngeal, vagus, accessory, hypoglossus, sympathetic chains, lymph nodes and the thoracic duct. Viscera are going to see are the trachea and the esophagus. In this presentation, we are going just to see the thyroid gland and the parathyroid gland. The thyroid gland is an endocrine gland that is situated in the lower part and the front and the side of the neck. It is related to the control of the metabolic activities going on in the body and also important role in the calcium metabolism. If we see the structure of the thyroid gland, you can see that thyroid gland itself is composed of the two lobes, left and the right lobe, which are connected to each other by the central isthmus. And there is also sometimes there is an extra lobe that is extending from the isthmus upward. This is known as the pyramidal lobe. So you can see that there is a left and right lobe and connected to each other by means of the isthmus. Sometimes the third lobe or the pyramidal lobe is extended upward from the isthmus. If we see the extension of the thyroid gland, the extension of the thyroid gland, then you can see that it extends from the oblique line of the thyroid cartilage till the fourth and fifth tracheal ring. And in the reference to the if we see the reference to the vertebral column, then it lies against the C5 से T1 vertebra था. यानी अगर हम देखें तो फ्रंट ऑफ नेक पे ऑब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज से लेके फोर्थ फिफ्थ ट्रेकियल रिंग तक इसकी एक्सटेंशन है. और इसको अगर हम अगेंस्ट द वर्टिब्रल कॉलम देखें तो C5, 6, C7 एंड T1 के अगेंस्ट वर्टिब्रा के अगेंस्ट ये लाई करता है. इसके पास दो तरह के कैप्सूल होते हैं. एक ट्रू कैप्सूल होता है एंड द फॉल्स कैप्सूल. द ट्रू कैप्सूल जो होता है दैट इज़ फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ इट्स ओन फेशिया. जब आप हिस्टोलॉजिकली स्ट्रक्चर देखते हो तो एसिनाई जो होते हैं दैट इज़ बीइंग एम्बेडेड इन द नेटवर्क ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. वही कनेक्टिव टिश्यू जो एसिनाई का है, जब वो इसी ग्लैंड्स के पेरीफ्री पे जाता है तो कॉन्डेंस हो जाता है एंड फॉर्म द is true capsule around the thyroid gland. लेकिन false capsule कैसे बनता है? False capsule जो आपका बनता है that is formed by the pretracheal layer of the investing layer of the deep cervical fascia. उसकी वजह से जो बनता है वो आपका false capsule हो जाता है. Importance इस capsule की thyroid gland में इस वजह से है कि जो हमारा इसका वीनस प्लक्सिस बनता है, कहने के कि इसके ब्लड वेसल का जो प्लक्सिस बनता है दैट लाइज डीप टू द ट्रू कैप्सूल. यानी कंडेंसेशन ऑफ द फेशिया जो इसका अपना था कनेक्टिव टिश्यू, उसकी वजह से जो ट्रू कैप्सूल बना था इसका अपने ब्लड वेसल ट्रू कैप्सूल के नीचे पड़े हुए होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि दैट इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड. तो जब कभी भी आपको थायराइड ग्लैंड की सर्जरी करनी होती है तो थायराइड ग्लैंड को अलॉन्ग विद इट्स कैप्सूल रिमूव करना होता है ताकि आप एक्स्ट्रा हेमरेज को अवॉइड कर सको और कोई भी ब्लीडर आर्टरी जो है वो कहीं भी इंटैक्ट ना रह जाए कि आप बोन बंद कर दो तो वहाँ पर जो है बाद में हेमरेज होती रहे. It is developed from the endoderm of the floor of the plumbative oral cavity in the region of the future foramen cecum and ultimobranchial body. Now, relationship of the lobes of the thyroid gland. If you see the lobes of the thyroid gland, these are more or less triangular in shape. तो triangular in shape है तो it has got the apex and it has got the base. जो apex है वो हमने कहा कि ये apex जो upward run करती है that lies against the oblique line of the thyroid cartilage और जो base lies करती है that lies at the level of the fourth or fifth tracheal ring. ठीक है जी. जो इसका एपिक्स है, जब आप एपिक्स देखते हो तो इसकी जब ट्रायंगुलेटेड सर्फेसेस आपने देखी हैं तो यू आर गोइंग टू सी द इंटीरियर बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर. और तीन सर्फेसेस हो जाएंगी. तीन सर्फेसेस कैसे हो जाएंगी? इट हैज़ गॉट द ये हम अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें तो हमें पता है कि इसका एक आपकी आ जाएगी लैटरल सरफेस और द सुपीरियर, ये कह रहे हैं आप सुपरफिशियल सरफेस. ये इसकी पोस्टरोलेटरल सरफेस हो जाएगी और ये इसकी मीडियल. यहाँ से देखें तो दिस इज़ द पोस्टरलैटरल सरफेस और द सुपरफिशियल सरफेस दैट इज़ जस्ट बिलो द स्किन. दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस एंड दीज आर द मीडियल सरफेस. अगर आप इन तीनों चीज़ों के की आप देखें रिलेशनशिप्स देखें, जो आपका इंटीरियर सरफेस है, इंटीरियर कह लें, सुपरफिशियल कह लें या सुप्रोलैटरल सरफेस कह लें, तो दैट इज़ इमीडिएटली कॉन्टैक्ट विद द स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड द डीप फेशिया.
और उसके बाद देखें तो द फर्स्ट मसल इज sternocleidomastoid, then sternohyoid, sternothyroid and omohyoid. These are all the muscles they are going to give the flap over the thyroid lobe. इसकी posterior surface पे देखें तो you are going to see the carotid sheath along with the gland along with its content. और इसकी medial surface पे देखें तो you are going to see the two tubes. They are teeth tubes are the trachea anteriorly and the esophagus posteriorly. Now if you see that in this slide it has it has been written that apex होता है और base होता है, तीन surfaces हैं, lateral, medial and posterolateral surface. Two borders हैं, anterior and the posterior border. जो apex है that is directed upward and laterally यहाँ पर, और base जो है directed medially and lies against the fourth fifth tracheal ring. ये हमने देख ली. तो lateral surface जो हमने देखा that has been surrounded by the four muscles. The four muscles आपको नज़र आ रहे थे, sternohyoid, sternothyroid, omohyoid and the sternocleidomastoid. जो आपको medially टू आपको ट्यूबिंग नज़र आ रही थी ट्रेकिया और esophagus, और जो posteriorly हमें blood vessels क्रॉस करेंगी they are basically the carotid blood vessels and internal jugular vein. ये medial surface में बता रहे थे the two tubes trachea and the esophagus. टू मसल जो डीपली पड़े हुए होंगे, दिस इज द इंफीरियर कंस्ट्रक्टर एंड द क्रीकोथायरॉइड, ये उसके मीडियली पड़े हुए हैं, एंड द नर्व्स एक्सटर्नल laryngeal nerve and the recurrent laryngeal nerve. These are present on the relationship of the medial surface of the thyroid gland. एंड द पोस्टरोलेटरल सरफेस को जब आप देखते हैं, ये पोस्टीरियर और लेटरल सरफेस जा रही है, तो यहाँ पर आपको कैरोटिड शीथ विद कंटेंट्स मिल जाएंगे. कैरोटिड शीथ में आपको कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वेगस नर्व, ये सब कुछ इनकाउंटर हो जाता है. एंटीरियर बॉर्डर जो देखेंगे तो एंटीरियर बॉर्डर में देखें तो देयर इज़ अ ब्रांच ऑफ द सुपीरियर, एंटीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायराइड आर्टरी. पोस्टीरियर बॉर्डर में देखें तो पोस्टीरियर बॉर्डर इज गोइंग टू सेपरेट द lateral surface from the posterolateral surface. इस पे posterior surface from the medial surface. और इसके जो रिलेशनशिप में आप अगर आप देखें तो आपको क्या क्या स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं. आपको ऊपर से सुपीरियर थायराइड आर्टरी नज़र आ रही, नीचे से इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, और ये दोनों आर्टरीज इस सरफेस पे जाके एनेस्टोमॉस कर रही हैं. देन फिर जो है उसके बाद सेकेंडली आप देखो तो अपवर्ड और लोअर लेवल पे आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड मिलेंगे, एंड ईच साइड ऑन द लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगी थोरैसिक डक्ट. अगर आप पोस्टीरियर सरफेस देखें तो पोस्टीरियर सरफेस पे अगर आप देखो तो हमने क्या कहा, ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर यू आर गोइंग टू सी द एनेस्टोमोसिस बिटवीन सुपीरियर एंड द इन्फीरियर थायराइड आर्टरी. ऊपर और नीचे आपको मिल जाएंगे इसी रिलेशनशिप में पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, और ऑन द लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगी थोरैसिक डक्ट. नाउ यू आर गोइंग टू सी द isthmus. ये isthmus पड़ा हुआ है इन द मिड लाइन, और मिड लाइन आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं उसमें क्या चीज़ हो जाएगी, स्किन सुपरफिशियल यहाँ पर नज़र आ जाएगा, स्किन सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ठीक है जी, और प्री ट्रेकियल लेयर. अब उसके बाद जो आप देखोगे कि इंटीरियर सरफेस के में हमने एक्सटेंड कहा था कि C2 C3 सी के ट्रेकियल रिंग के लेवल पे ये पड़ा हुआ होता है, कनेक्टिंग लेफ्ट एंड द राइट लोब. इसके जो इंटीरियरली आपको दो मसल मिलेंगे, दे आर गोइंग टू स्टेर्नोहायोइड एंड द स्टेर्नोथायराइड. यहाँ पर आपको पता है कि इंटीरियर जुगुलर वेन होती है, और जो पोस्टीरियर सरफेस है दैट इज़ बीइंग रिलेटेड टू द सेकंड टू फोर्थ ट्रेकियल रिंग. अपर बॉर्डर पे जो अब आप देखोगे, इसके अपर बॉर्डर पे अगर isthmus के देखोगे जो है जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है उसकी ब्रांचेस का एनेस्टोमॉस हो रहा है, और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांचेस का एनेस्टोमॉसिस होता है. Now what are the blood supply of the thyroid gland? Blood supply of the thyroid gland is very much important, और बहुत दफ़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है. यहाँ से देखें तो ब्लड सप्लाई ऑफ द थायराइड ग्लैंड जो है वो दो आर्टरी से है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी. जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और इन्फीरियर थायराइड ब्रांच जो है वो दैट इज दी ऑन द राइट साइड इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द थायरोसर्वाइकल ट्रंक, जो कि सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है. अब देखें सुपीरियर थायराइड आर्टरी जब आती है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो ब्रांच एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की डाउनवर्ड रन करती है, डीप फेशिया को पियर्स करती हुई सुपीरियर सरफेस या सुपीरियर पोल ऑफ द लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड पे पहुंच के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, इंटीरियर ब्रांचेस एंड द पोस्टीरियर ब्रांचेस. जो इंटीरियर ब्रांच है वो इंटीरियर बॉर्डर के लॉन्ग रन करती है, जबकि पोस्टीरियर ब्रांच जो है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड पे रन करती हुई isthmus के पास आ जाती है यूँ. ठीक है जी. अब इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जो थी, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी इज गोइंग टू राइज फ्रॉम द थायरोसर्वाइकल ट्रंक, जो कि सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है. ठीक है जी. वो अपवर्ड रन करता है और 4-5 इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में रन डिवाइड हो जाता है, एंड हर ब्रांच जो होती है वो इंडिपेंडेंटली थायराइड के सब्सटेंस में एंटर करती है.
जब वो सब्सटेंस में एंटर करती है तो कुछ जो इंटीरियर ब्रांचेस वो इंटीरियर पे रन करती हैं और जाके इंटीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर लेती हैं, जबकि असेंडेंट ब्रांच जो होती है वो पोस्टीरियरली रन करती है और पोस्टीरियर पार्ट पे जाके पोस्टीरियर थायराइड आर्टरी के साथ जो पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायराइड आर्टरी है उसके जाके एनास्टोमोस कर देती है, और ख़ुद जो दोनों मेन आर्टरीज होती हैं दे आर गोइंग टू एनास्टोमोस अलोंग द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द इस्थमस ग्लैंड। इसको अगर हम दोबारा से देखें तो दोबारा से हम ये देख रहे हैं कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी आ रही है, अगर ये हमें इसके पेन का कलर बदल के मैं आपको बताऊं, ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी आ रही है, ठीक है जी। ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी आती है फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और जब सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड पे पहुंचती है तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है ऑन द ईदर साइड, ठीक हो गया जी। ये डिवाइड हुई सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड पे जाके, जो एंटीरियर ब्रांच है दैट इज़ गोइंग टू ट्रेवल अलॉन्ग द एंटीरियर जो है बॉर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और वो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द इस्थमस पे जाके अपनी दोनों साइड की आर्टरीज एनास्टोमोस कर देंगी। ये पोस्टीरियर ब्रांच आ रही है। जब नीचे से आती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी ग्लैंड के पास पहुंचती है तो उससे पहले 4-5 ब्रांचेस दे चुकी होती है, जो खुद जो होती है एक ब्रांच जो होती है जो है वो एंटीरियर थायराइड आर्टरी की जो इंटीरियर ब्रांच आ रही है उसके साथ इंटीरियर बॉर्डर पे एनास्टोमोस कर लेती है दोनों साइड से, ठीक है जी। एक तो उसके साथ एनास्टोमोस कर लिया इंटीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ, और दोनों ने एक दूसरे के साथ लोअर बॉर्डर ऑफ द इस्थमस पे भी कर लिया। लेकिन जो असेंडिंग ब्रांच है दैट इज गोइंग टू एनास्टोमोस द पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायराइड आर्टरी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड में। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत दफ़ा पूछी जाती हैं ब्लड सप्लाई की। ये तो होगी आपकी सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। सम टाइम दे आर द मिडल, और जो है थायरोडीमा आर्टरी, और उसके बाद एक्स्ट्रा आर्टरीज भी होती हैं जो थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती हैं, जो कि ब्रांचेज होती हैं इसोफेजियल और ट्रेकियल आर्टरी की। और थायरोडीमा आर्टरी एक एक्स्ट्रा आर्टरी है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द हेमरेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि थायराइड की सर्जरी में जो हेमरेज होता है उसके लिए नोटोरियस होती है। हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि हमें आर्टरी को देख लेना चाहिए कि हमने सारी आर्टरीज बंद कर उसमें जो है वो लाइगेट कर दी हैं कि नहीं। और ये आर्टरी जो होती है दैट इज़ ओनली प्रेजेंट द 3% ऑफ द इंडिविजुअल्स, और उसको लोअस्ट थायराइड आर्टरी या थायरोडीमा आर्टरी भी कहते हैं, और वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से राइज कर रही होती है और उसको सप्लाई कर रही होती है। देन इज़ द लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज इज़ बाय मीन्स ऑफ द पहले हम इसको वेन्स की डिस्कस करें। वेन्स आर वीनस ड्रेनेज ऑफ द thyroid is by means of superior, middle and inferior thyroid vein. जो superior thyroid vein है वो along with the superior thyroid artery is going to drain into the internal jugular vein. Inferior thyroid artery जो होगी that is going to drain into the ब्रेकियोकेफेलिक लेफ्ट ब्रेकियोकेफेलिक वेन, ठीक है जी। और जो मिडल होगी दैट इज़ आल्सो गोइंग टू ड्रेन इनटू द इंटरनल जगलर वेन, यानी मिडल थायराइड वेन और सुपीरियर थायराइड वेन जो है इंटरनल जगलर में जा रही है। जो इन्फीरियर थायराइड वेन है दैट इज़ गोइंग टू ड्रेन इनटू द ब्रेकियोकेफेलिक ट्रंक। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज अगर देखा जाए तो इनको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दोगे। लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए कैसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अपर एंड लोअर पोर। ये अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में जाएगा, ये लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में जाएगा। यहाँ ट्रेकिया है तो ये या तो डायरेक्टली डीप में सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में चला जाएगा या ट्रेकिया या पैराट्रेकियल लिम्फ नोड के थ्रू। और जो अपर वन है अपर डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में जाएगा आइदर डायरेक्टली और द लेरेंजियल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड के थ्रू। नर्व सप्लाई इज़ वेजोमोटर यूजुअली, और जो वेजोमोटर है दैट इज़ बीइंग सप्लाइड बाय द मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन, या और कुछ ट्विक्स जो उसके पास आती हैं दे आर फ्रॉम द सॉरी कहाँ चला गया उनके, और जो कुछ ट्विक्स हमें मिल रही होती हैं वो इन्फीरियर सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से मिल रही होती हैं। आर्टीरियल सप्लाई यहाँ पे हमने ग्लैंड में ये देखें तो देखा तो ये देखें दिस इज़ द सुपीरियर थायराइड आर्टरी, और वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, सुपीरियर एंटीरियर में और पोस्टीरियर में। एंटीरियर ब्रांच ना तो सिर्फ एंटीरियर बॉर्डर के लॉन्ग रन कर रही है और एक ब्रांच दे रही है जो इस्थमस पे जाकर दूसरी साइड की ब्रांच से एनास्टोमोस कर रही है इन द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द इस्थमस। जो खुद है वो नीचे चलेगी सुपीरियर थायराइड आर्टरी, और वो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांच के साथ एनास्टोमोस कर रही है। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी आ गई। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, एक पोस्टीरियर पे एक इन्फीरियर पे। इन्फीरियर वाली जो होगी एंटीरियरली वो एंटीरियर के साथ जो है सुपीरियर वाली के साथ भी कर रही है, और इस्थमस के साथ अलॉन्ग भी दोनों साइड की एनास्टोमोसिस हो रही है। उसके बाद थायरोडीमा आर्टरी है दैट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द सबक्लेवियन आर्टरी।
इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मेंशन करने की है वो ये है कि दीज आर्टरीज आर सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी आर इन क्लोज रिलेशनशिप विद द टू इम्पॉर्टेंट नर्व्स। अगर आप देखो तो दिस इज द सुपीरियर थायराइड आर्टरी अप्रोचिंग द थायराइड ग्लैंड, और इनके इंटीमेट रिलेशनशिप को मैं आपको एक नर्व नज़र आ रही, दैट इज़ द एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। ठीक है जी, दिस इज़ द एक्सटर्नल जो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की एक्सटर्नल लेरेंजियल ब्रांच है वो नज़र आ रही है। अगर आप इसके कोर्स को गौर से देखो तो आप ये देखोगे कि ये जो नर्व है दैट इज़ रनिंग इन क्लोज अप्रॉक्सीमेशन विद द आर्टरी। ये देखें, ये बिल्कुल साथ साथ दोनों रन करती आ रही है टिल द थायराइड ग्लैंड। जो ही वो थायराइड ग्लैंड के पास आ जाती है उन दोनों में थोड़ा सा रास्ता फ़र्क हो जाता है, द डिस्टेंस अपीयर, यानी वो अपने रास्ते चली जाती है टू सप्लाई द क्रिकोथायराइड और वो अपने रास्ते चले जाती है टूवर्ड्स द ग्लैंड। अब इसका मतलब ये है कि जब कभी हमने सर्जरी करनी है, हमने ब्लड सप्लाई ऑफ द थायराइड ग्लैंड को ब्लॉक करना है, तो यू हैव टू लाइगेट द सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो हमें इस बात को ख्याल रखना पड़ेगा कि हम इसको नर्व को साथ ही टाई ना कर दे, क्योंकि अगर नर्व टाई कर दी तो हम एक इम्पॉर्टेंट जो मसल था जो क्रिकोथायराइड है उसकी नर्व सप्लाई डैमेज कर देंगे। उसकी वजह से परमानेंट हॉर्सीनेस ऑफ द वॉइस प्रोड्यूस हो जाएगी पेशेंट में। टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ द इंजरी तो आपने क्या करना है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और इस सुपीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट करने के लिए जो आप पोजीशन चूज़ करोगे दैट इज़ द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी इमीडिएटली अबव द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड आप इस आर्टरी को लाइगेट करोगे, इंस्टेड कि आप इसको ऊपर से कहीं पे भी इजीली फ्रीली लाइगेट कर सकते हो। रिवर्स इज़ द केस विद द इंफीरियर थायराइड आर्टरी। अब आप ये देखो, इंफीरियर थायराइड आर्टरी ये जा रही है और एक्सटर्नल रिकरेंट रेंजियल नर्व आपको ये नज़र आ रही है। अब ये देखो, यहाँ पे दोनों में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब वो ग्लैंड से के पास जा रहे हैं तो डिस्टेंस जो है, ये देखो डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर बहुत दोनों एक दूसरे के इमरजेंस में करीब हैं। लेकिन क्या करेंगे, जो ही वो थायराइड ग्लैंड के करीब आते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा एक मिनट, जब वो थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल करीब आते हैं तो दे आर इन क्लोज अप्रॉक्सीमेशन विद ईच अदर यहाँ पर। लेकिन जब वो दूर हैं तो वो एक दूसरे से दूर हैं। इट मीन्स अगर हमें इन्फीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट करना है तो हमें इन्फीरियर थायराइड आर्टरी को थायराइड ग्लैंड से ज़रा डिस्टेंस पे आप उसको लाइगेट करोगे या सूचर लगाओगे या उसको क्लैम्प करोगे ब्लड सप्लाई बंद करने के लिए, इंस्टेड ऑफ क्लोज टू द ग्लैंड। क्योंकि क्लोज टू द ग्लैंड जब आप जाओगे तो ये आर्टरीज दोनों एक दूसरे, आर्टरी और नर्व एक दूसरे की क्लोज अप्रॉक्सीमेशन में है, और अगर आप इसको थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल करीब जाके लाइगेट करोगे तो आपके पास मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि आप इसको इस सूचर में टाई अप कर दोगे, जिसकी वजह से रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज हो जाएगी। सो सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व के साथ रिलेटेड है, और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जो है एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व के साथ रिलेटेड है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी को आपको थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पास जाके लाइगेट करना पड़ता है, जबकि इन्फीरियर थायराइड आर्टरी को आपको अवे फ्रॉम द थायराइड जो है वो लाइगेट करना पड़ता है। यहाँ पे भी अगर आपको इस डायग्राम पे नज़र आ रहा हो कि दिस इज़ द इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जो इन्फीरियर बॉर्डर पे जाके कर रही है, और ये ऑन टू द थायराइड ग्लैंड, दिस इज़ इन वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। जबकि यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि ये दोनों सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जब थायराइड ग्लैंड के पास आ जाती हैं दे आर नॉट इन क्लोज एसोसिएशन विद ईच अदर, लेकिन ऊपर जब वो इकट्ठे आ रहे हैं तो दे आर इन क्लोज एसोसिएशन विद ईच अदर। इसलिए सुपीरियर थायराइड आर्टरी को जब बंद करना है आपने तो दैट इज़ क्लोज टू द थायराइड ग्लैंड, लेकिन जब इन्फीरियर थायराइड आर्टरी को क्लोज करना है तो यू आर गोइंग टू क्लैम्प इट अवे फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। Venous drainage जैसे बताया कि superior thyroid vein is going to drain into the internal jugular vein, same is the case with the middle thyroid vein, लेकिन जो inferior thyroid vein है that is going to drain up into the brachiocephalic trunk। ये middle thyroid vein भी बताई हुई, internal jugular vein में बता रहे हैं इनको। अप्लाइड एनाटमी में अगर आप देखो तो प्रेजेंस ऑफ द थायरोइडीमिया आर्टरी जो है दैट इज़ गिविंग द चांस ऑफ द प्रोफ्यूज ब्लीडिंग। सो एनी प्रोसीजर ऑफ द नेक बिलो द स्टमक, तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम में जब सुपीरियर इन्फीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट कर दें तो यू मस्ट चेक के कोई एक्स्ट्रा आर्टरी जो है वो थायराइड ग्लैंड में एंटर तो नहीं करी, चाहे वो इसोफेजियल हो, ट्रेकियल हो या थायरोइडीमा आर्टरी क्यों ना हो। Thyroglossal duct or cyst, these are the remnant of the thyroglossal duct at any point in the way of the descent of the thyroid gland during its development। pyramidal lobe की presence को भी आपने चेक कर लेना है। ठीक है जी, ectopic thyroid gland जो है that can be lied in any part while descending from the foramen cecum। excessive thyroid gland भी present हो सकते हैं in the close approximation to the thymus or thyroid muscle।
नॉन न्यूप्लास्टिक नॉन इन्फ्लेमेटरी इलाजमेंट जो होती है उसको ग्वाइटर कहते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेशन हो जाता है सारे के सारे इर्द गिर्द स्ट्रक्चर में, और ये प्रेशर सिम्टम जो होते हैं वो नर्व इन्वॉल्वमेंट भी दे सकते हैं ग्वाइटर में, जिसकी वजह से होर्सीनेस ऑफ वॉइस भी प्रोड्यूस हो जाता है। और कंप्रेशन किन किन स्ट्रक्चर की हो सकती है, आइदर इट कैन बी ड्यू टू कैन बी ऑन द ट्रेकिया, कैरोटिड शीथ या वीनस एनगार्जमेंट, क्योंकि पूरा की पूरी वीनस रिटर्न वो जो है वो प्रेशराइज हो जाती है, इसलिए वीनस प्लस एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है। The recurrent laryngeal nerve and inferior thyroid vein lie close to each other, hence the ligature to the inferior thyroid artery should be applied away from the gland, as the nerve shows variable relationship with the artery. At times, nerve is in the front, back or between the loop of the inferior thyroid artery. Parathyroid gland, they are the four parathyroid gland. One is the superior pair and another one is the inferior pair. Normal parathyroid gland are approximately the size of the grain or of the rice or the lentil. Its normally size is 5 to 4 5 multiplied by 4 multiplied by 2 millimeter and is weighing 35 to 50 milligram just. Enlarged parathyroid gland can be 50 milligram to 20 milligram in weight and most typically 1 to 1 gram or 1 centimeter in size. Superior parathyroid gland. The location of the superior thyroid gland are usually on the posterior lateral surface of the middle of this to the superior thyroid lobe. They lie under the thyroid superficial fascia, posterior to the recurrent laryngeal nerve, and can be visualized by careful dissecting the thyroid capsule in this region. If we see in this region, this is the posterior, the border of the thyroid gland, and this is the posterior surface of the thyroid gland. So these are the basically the most common position of the parathyroid gland कि वो posterior surface के ऊपर posterior border पे जहाँ पे superior और inferior thyroid artery की branches anastomose कर रही हैं और external laryngeal nerve गुजर रही है, उसके close relationship में आप इस glands को superior thyroid gland को है वो आप जो है वो ढूंढ सकते हैं. Inferior parathyroid glands हैं, they reside in usually the anterior mediastinal compartment anterior to the recurrent laryngeal nerve. They are most commonly found in the thymic tract because ये commonly develop करते हैं in association with the thymic gland. उनकी same common region है, इसलिए इनका जो पोजीशन लाई करने की है तो वो भी एक दूसरे के करीब ही होते हैं, thymus और जो है inferior parathyroid gland. The superior parathyroid gland receive most of their blood supply from the inferior thyroid artery and are also supplied by the branches of the superior thyroid artery in the 15 to the 20% of the patient. The inferior parathyroid gland, however, receive their arteries usually from the inferior thyroid arteries. Thymus. Thymus is the midline structure that is usually bilobe और each जो lobe है that is pyramidal in shape or connected to each other by the alveolar tissue. वो मीडियास्टाइनम में लाई करते हैं. मीडियास्टाइनम जो है सुपीरियर मीडियास्टाइनम दैट इज़ बेसिकली अ स्पेस बिटवीन द टू लंग्स एंड it is a space where heart is present. The thymus gland is a small organ behind the breastbone यानी sternum के पीछे है और important function play करता है immune system में और endocrine role में. Though the thymus begin to atrophy या decay कर जाता है during the puberty, its effect in training T lymphocyte to fight infection and even the cancer lasts for the lifetime. The thymus gland lies in the chest directly behind the breastbone of the sternum in front of the heart in the area between the two lungs called as the anterior mediastinum. Sometimes the thymus gland is found in another ectopic region such as in the neck, along the thyroid gland or the superior surface of the lung or the pleura or near the area where the blood vessel in the bronchi enter the lungs. It is named thymus due to its shape being similar to that of the thymus leaf, pyramidal in shape with two lobes. Two lobes of the thymus are broken down to the lobules. The lobules are after cortex, occupied by the immature T lymphocyte, and inner medulla that is occupied by the mature T lymphocyte. It is considered as a part of the lymphoid organs or immune system similar to that of the tonsil, adenoid or the spleen. It undergoes quite varies in the changes with the age. The thymus gland is large in the infant, but after infancy it grows and reaches its maximum size at the puberty. After puberty, the gland shrinks and becomes largely replaced with the fat, and the gland is very small in the elderly people, but can sometimes atrophy prematurely in response to the severe stress. The term used to describe the atrophy of the thymus gland with the age is the thymus involution.
Functions of the thyroid gland is that these are this is very active from before the birth till the puberty, and it functions both as a lymphoid organ and the endocrine organ, an organ of the endocrine system that produce hormones. In order to understand the role of the thymus gland that it plays in the immunity, is that it's helpful to find the first distinguish between the T lymphocyte and the B lymphocyte, and it is the training center for the T lymphocyte, and it trained the T lymphocyte against the infectious agent. Normal thymus with a cervical component. This the structure you can see the presence of the anterior mediastinum of the chest. This is in the exact position of the thymus in close relation with the pericardium of the heart. Thank you.